नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और मैं आपसे ये साझा करना चाहती हूं कि निजी वजहों से पिछले 2 हफ्तों तक मैं आपके बीच नहीं आ सकी, लेकिन आज एक बार फिर सवाल पब्लिक का को लेकर आपके बीच में आ गई। आजकल तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी मामला सुर्खियों में है। मतलब किसी ने पैसा दिया, फेवर किया, उसके बदले संसद में सवाल हुआ, ये आरोप लगाए गए हैं। इसका सच सामने आना बाकी है। उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए संसद का बेजा इस्तेमाल करने के इस मामले में कई किरदार हैं। इन्हीं किरदारों में से एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज मैंने किया है। इंटरव्यू इस तरह से है कि हीरानंदानी से बेहतर इस मामले में कोई नहीं जानता कि सच क्या है, क्योंकि हीरानंदानी जी ही वो शख्स हैं जो महुआ मोइत्रा के दोस्त भी थे और उनके पार्लियामेंट का लॉगिन भी इस्तेमाल करके सवाल खुद पूछते थे। उनका ये इंटरव्यू उनके इस एफिडेविट के बाद है जो उन्होंने संसद के एथिक्स कमेटी को भेजा है। इंटरव्यू में दर्शन हीरानंदानी एफिडेविट के उन दावों पर मोहर लगा रहे हैं कि कैसे महुआ ने उनके जरिए अडानी मुद्दे को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया। दर्शन हीरानंदानी इस इंटरव्यू में बहुत सारे एक्सप्लोसिव दावे कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको इसी शो में दिखाने वाली हूं। महुआ के खिलाफ दर्शन हीरानंदानी की ये गवाही आपको सुनाऊंगी और सवाल पब्लिक का भी उठाऊंगी कि क्या कैश फॉर क्वेरी का मामला पूरी तरह से साफ है, सारे सबूत गवाह महुआ के खिलाफ हैं? क्या मोदी को नीचा दिखाने के लिए देश की संसद के लेवल पर समझौता हुआ? क्या राहुल गांधी कैप्टन, महुआ मोइत्रा प्लेयर और अडानी पर खेला हुआ? यही है आज सवाल पब्लिक का। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी दुबई में रहते हैं, लेकिन भारत में उनका बहुत बड़ा कारोबारी हित है। उन्होंने एफिडेविट में स्वीकार किया है कि महुआ मोइत्रा के संसद के ईमेल अकाउंट से गौतम अडानी के खिलाफ उन्होंने इसे कई बार सवाल ड्राफ्ट किए। महुआ मोइत्रा ने इसे पीएमओ की क्रिएटिव राइटिंग कहा था, लेकिन दर्शन हीरानंदानी का पक्ष आप उनसे ही सुनिए मेरे सवालों के जवाबों के तहत। ये आपके लिए लाइव एक्सक्लूसिव दर्शन हीरानंदानी के अपने जवाब, अपनी आवाज। Thank you very much for joining me on the News Hour tonight, Mr. Darshan Hiranandani. Thank you for speaking to me. You've stirred up quite a hornet's nest here back in India. I just want to begin by asking you about your association with the Trinamool Congress Member of Parliament, Mahua Moitra, about whom you've written in an affidavit. She's been a close personal friend since 2017. Okay, and she had raised questions about your affidavit. First, she raised the question about the fact that it was on plain paper. Since then, of course, it's been notarized. She's also made some allegations about how this affidavit has been signed and written by you under duress. I want to ask you, Mr. Darshan Hiranandani, have you given this affidavit under duress? Navika, the affidavit is signed by me voluntarily, no fear, no favor. Testimony of that is that I had it notarized at the Indian consulate in Dubai. So you're saying Mahua Moitra is wrong when she says that this was an affidavit which was drafted in the Prime Minister's office and sent to you, and you were given 20 minutes with a gun to your head to sign it? Navika, I can only say that this was clearly drafted by my lawyers based on my statement.
Since I'm in Dubai, I had it notarized in the Indian consulate in Dubai. Then I sent it to the Privilege Committee of Lok Sabha and copied to CBI and Dr. Nishikant Dubey by email. But let me ask you about allegations, and the story begins from the fact that there is an affidavit that has been given by Mr. Jay Anand Dehadrai, who is a lawyer and a close associate of Ms. Mahua Moitra, who says that he is privy and he is witness to a few conversations between you and the Member of Parliament. Mr. Hiranandani, Mr. Jay Dehadrai has accused both you and Moitra of a criminal conspiracy of asking questions in Parliament. Do you think you were under pressure to ask these questions in Parliament through Ms. Moitra? Navika, what actually occurred is there in my affidavit. Any part that or any involvement in anything is in this matter is regrettable and an error of my judgment. आपने दर्शन हीरानंदानी को सुना। दर्शन हीरानंदानी साफ कह रहे हैं एफिडेविट किसी दबाव में नहीं था, लेकिन मैंने फिर से पूछा एफिडेविट में इस मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया का ऑपोजिट व्यू क्यों आया था? जवाब क्या है उसे भी सुनिए। So let me ask you, on 16th of October, the Hiranandani group issued a media release stating that the charges made by Mr. Jay Anand Dehadrai, where they relate to you, are baseless. 3 days later, on 19th October, you put out your affidavit. Why did you decide to abandon your previous position, and does it really mean that the allegations of Mr. Jay Anand Dehadrai are actually true and correct? Navika, my sworn affidavit is related to my personal involvement in the matter. It prevails in that regard. I mean, as far as that is concerned, I have nothing more to add. But the reality is that after the complaint of Advocate Dehadrai brought the matter into full limelight, it then snowballed into a political controversy with the Parliamentary Committee on Ethics formally taking up the matter. Since it involved me by name directly and personally, it was incumbent upon me as a responsible citizen to bring the facts as they are before the public. दर्शन हीरानंदानी ने अपने बयान क्यों बदले? पहले कंपनी के प्रेस रिलीज में कहा यह सब झूठ है और फिर एफिडेविट दिया। इस सवाल पर जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि जब यह मामला एथिक्स कमेटी में गया तो उन पर यह लाजमी था कि वो सच बोलें और अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट देश और दुनिया के सामने रखें। दर्शन हीरानंदानी ने मुझसे इंटरव्यू में और भी कई बातें कही हैं, खासकर महुआ को महंगे गिफ्ट देने के मामले पर भी हीरानंदानी ने अपना पक्ष रखा है। मैं यह हिस्सा आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन आज जितना आपने सुना उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं और सवाल पब्लिक का आज एक है कि संसद में अडानी मुद्दा उठाने के पीछे आपराधिक साजिश का दावा कितना मजबूत है। सवाल नंबर 2, एथिक्स कमेटी अगर महुआ को दोषी पाती है तो क्या इससे राहुल गांधी का अडानी दाव कमजोर पड़ेगा? और सवाल नंबर 3, क्या मोदी के खिलाफ लड़ाई में देश की संसद से समझौता हुआ? सीबीआई क्या सच पता लगाएगी? आज यही सवाल सबसे ज्यादा अहम है और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तौसीफ खान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी एक नॉन बायस्ड व्यूअर और पॉलिटिकल एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा जी से। अभिजीत अय्यर मित्रा जी, आज देश और दुनिया के सामने पहली बार दर्शन हीरानंदानी ने कैमरे पर यह कहा है कि उन्होंने एफिडेविट किसी दबाव में नहीं दिया और जिस तरह के महुआ मोइत्रा जी का कहना था कि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ड्राफ्ट हुआ और 20 मिनट का समय दिया गया और एक गन रखी गई उनके
सर पर कि ये साइन करिए, ऐसा कोई दबाव नहीं था, ये उनके लॉयर्स ने ड्राफ्ट किया। मैं पूछना चाहती हूं आपसे अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या इससे महुआ मोइत्रा जी का सबसे पहला डिफेंस टूट जाता है या ये सब कुछ सरकार के प्रेशर में हो रहा है, ये उनका जो आरोप है ये अभी भी टिका रहेगा? थैंक यू नविका जी, और कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, आपने बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव किया है इस पे। तो मैं बस दो चीजें बोलना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो महुआ जी पर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने कभी भी, महुआ जी ने एक भी स्टेटमेंट में उनको गलत नहीं बताया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि उन्होंने अपना पासवर्ड और लॉगिन शेयर नहीं किया, और उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि उनको 35 फेरागामो के जूते और लुई वुइटन, हर्मीज, इन सब के बैग या गुच्ची के बैग मिले थे करके। ये पहली बात है जो हमको याद रखना है। दूसरी बात ये है, दर्शन हीरानंदानी जी दुबई में रहते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं और आप जानते हो, ना ही तो अमित शाह जी ना ही तो मोदी जी दुबई गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। तो दर्शन जी ने कैसे ये पूरा स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया इतने जल्दी, जब मोदी जी, अमित शाह, कोई भी उधर गया नहीं है? और अगर आप उधर दर्शन हीरानंदानी के ऑफिस में जाएंगे दुबई में, आपको ही पता लगेगा कि उधर काफी सारा सिक्योरिटी ये है। क्या ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन किया है जहां इनका अपहरण हुआ था दुबई में, और इनका सर पे एक बंदूक रख के ये सब दिखाया गया था? उन्होंने साफ साफ बोला है। ठीक है, अगर उस बार रखा गया था जो आपने अभी इंटरव्यू किया है, आगे क्या बीजेपी के हत्यारे थे उधर जो बंदूक लेके खड़े थे कि भाई दर्शन तू नविका ये पूछेंगी, तू बस यही बोलना करके? बिल्कुल नहीं, सभी को पता है। तो ये क्या ये है कि बंदूक रख के गया था? उसने सीधा सीधा बोला है कि उसके लॉयर ने ये स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया था, और जो दर्शन जी के लॉयर ने ड्राफ्ट किया है उसमें और जय अनंत जी के स्टेटमेंट में काफी सिमिलैरिटी है। तो बहुत बड़ी बात है ये। और तौसीफ खान जी, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि महुआ मोइत्रा जी के ऊपर आरोप कई सारे हैं और आरोप के बदले में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं है। जिस तरह से अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे गिफ्ट्स नहीं मिले या मेरे घर का इंटीरियर में पैसे नहीं खर्चाए दर्शन हीरानंदानी ने, या कोई इसमें झूठ नहीं है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि महुआ मोइत्रा जी ने जानबूझकर दर्शन हीरानंदानी के सवालों को संसद में उठाया, उसके बदले में उनसे कई गिफ्ट्स, कई उपहार लिए, और संसद के यहां मेरे हिसाब से एक तरह का कारोबार बना दिया संसद को, जहां पर आप गिफ्ट्स लीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लॉगिन से आपको आईडी दे देगा, आप सवाल पूछिए और बदले में हमें गिफ्ट दे दीजिए, हमारे घर का काम करा दीजिए। क्या ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एथिक्स या उनके कार्य क्षेत्र के खिलाफ नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट के एथिक्स के खिलाफ नहीं है? देखिए नाविका जी, आपने सही कहा कि महुआ मोइत्रा जी पे एक इल्ज़ाम लगा हुआ है उनके पार्लियामेंट्री एथिक्स के अगेंस्ट जाने का, लेकिन ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम अभी सिद्ध नहीं हुए। लेकिन ये इल्ज़ाम क्यों लगाए गए इस पे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा एक अकेली एमपी है जिन्होंने अदानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाया। ऐसी एक महिला एमपी हैं जिन्होंने 60 से भी ज़्यादा सवाल अदानी ग्रुप के जो बहुत सारे डील्स जिस पे सवाल खड़े होते हैं उनको उन्होंने पब्लिक के बिहाफ में पार्लियामेंट में पूछे, और जिनका जवाब अभी तक पब्लिक को नहीं मिला है। तो ठीक है, जब कोई एमपी इस तरह के हिमाकत करता है कि वो टॉप सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उस पर भी अटैक हो सकता है। तो ये उसका भी एक हिस्सा हो सकता है कि इनके ज़बान को बंद कराने के लिए इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं ये बहुत ही इनकन्वीनियंट सवाल है।
ऐसे सवाल दोबारा ना उठे, इस बात को रोकने के लिए महुआ मोइत्रा पे भी ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। चलिए, ये इल्ज़ाम लगे हैं, इन्हें अभी साबित करने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे वो सवाल जो अडानी इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट है वो अभी भी उसका जवाब नहीं है। इसका दूसरा पहलू अब ये देखिए कि ये जो इल्जाम लग रहे हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ, ये कब से? ये 2019 का मामला है। तौसीफ खान जी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी तौसीफ खान जी, मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं ये सवाल महुआ मोइत्रा ने लोगों के बिहाफ पर उठाया, लोगों की तरफ से उठाया संसद में, लेकिन दर्शन हीरानंदानी कह रहे हैं लोगों के बिहाफ पर नहीं, मेरे बिहाफ पर उठाया। मैंने वो सवाल उठाए थे और मैंने उनसे बातचीत की थी और मैंने ये सवाल उनको दिए और ये सवाल उठाए गए। तो शहजाद पूनावाला जी, मैं यही तो सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहती हूं, क्या ये सवाल देश के पब्लिक की तरफ से पूछे जा रहे थे या ये एक कारोबारी सिलसिला था जहां आपने कुछ उपहार लिए, कुछ आपने बैग्स लिए और घर का काम करवाया? तमाम पैसों की भी चर्चा है जय आनंद देहद राय के एफिडेविट में। ये तमाम चीजें लेकर आपने सवाल पूछे और सवाल कॉरपोरेट इंटरेस्ट जो दूसरी तरफ थे उनके सवाल पूछे, लेकिन सवाल अडानी पर उठाए ताकि आप निशाने पर नरेंद्र मोदी को रख सकें। क्या शहजाद पूनावाला ये एक पॉलिटिकल एजेंडा थ्रू कॉरपोरेट प्ले ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था? नाविका, एक तो आप 2 हफ्ते के बाद आई और ट्रू टू योर जर्नलिज्म आप सबसे बड़ी स्टोरी लेकर आई, तो आपको शुभकामनाएं। और आपकी स्टोरी की प्रशंसा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी तक जो हलफनामे के रूप में 2 लोगों ने, जो स्टेक होल्डर्स ने ये बात रखी थी, उसको आज आपके इस इंटरव्यू के बाद कबूलनामा कहा जा सकता है। तो आपने हलफनामे को कबूलनामा, क्योंकि जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है वो स्वतः बिना कोई दबाव के कैमरे के सामने आकर कह रहा है, तो अभी ये फंडामेंटली ये इसका लीगल इंप्लीकेशन बढ़ चुका है। दूसरी बात, इस कबूलनामे के माध्यम से क्या पता चलता है नाविका जी? 1, ये संसदीय प्रणाली का उल्लंघन तो है। 2, ये संसदीय एथिक्स का उल्लंघन तो है। 3, कैश फॉर क्वेरी मतलब कि क्विड प्रो क्वो का मामला तो सीधे सीधे नजर आता है, परंतु इससे ज्यादा गंभीर मामला पता है क्या है नाविका? मैं यहां पर जयपुर में हूं, हम लोग क्या करते हैं, रेंट अ कार, रेंट अ हाउस, हायर अ फ्लैट, ये कर देते हैं। हायर एन एमपी पहली बार, रेंट एन एमपी पहली बार। आप सोचिए कि जनता आपको, गरीब से गरीब जनता, अपने सवाल पूछने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में बेचती है और आप उस पूरे अधिकार को टर्न अराउंड करके किसी को एमपी ही बना देते कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर सवाल पूछिए। और जो सबसे बड़ा बिडर या जो सबसे अमीर है, मतलब लोकतंत्र का उल्लंघन। और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमारे आर्थिक हितों पर तो एक समझौता और खिलवाड़ है ही, परंतु जो लॉग इन दिया गया, लॉग इन एक्सेस देना, इसका मतलब ये कैश फॉर क्वेरी नहीं बल्कि ये फॉरेन सॉइल से। अब आपको कैसे पता कि दर्शन हीरानंदानी के स्टाफ ने किसी और ग्रुप को ये नहीं दिया? क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई एंटी इंडिया एलिमेंट इंक्लूडिंग सोरोस ने उसका इस्तेमाल नहीं किया और सवाल नहीं लगाया पार्लियामेंट में? तो ये इसके इंप्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी तक भी जाते हैं। और आखिरी बिंदु मेरा ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के अडानी के खिलाफ नहीं लड़ रही है। अभी जो तौसीफ ने कहा कि महुआ जी अडानी के खिलाफ एक लौती आवाज, मतलब ममता बनर्जी अडानी जी के साथ है ना, ये मान लिया जाए ना। और अगर है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, या क्योंकि उनको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने कोई गलत काम किया इसलिए अपने आप को डिस्टेंस कर रही है और कोई उनका प्रवक्ता नहीं आ रहा है? और अगर उनको लगता है गलत किया है तो केवल नो कमेंट से क्यों? आपको तो उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक की इंक्वायरी नहीं होती तब तक क्यों आप उसको रिजाइन नहीं करवाते, क्यों आप उनको सैक नहीं करते? आप दूसरों पर तो यही आप पैमाना लगाते हैं ना कि अंटिल इंक्वायरी इज ओवर यू मस्ट स्टेप असाइड। तो ये स्टेप असाइड क्यों नहीं करवा रहे? मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं, हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी भी मौजूद हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मैं आपके पास आने से पहले आपको एक और अंश सुनाना चाहती हूं इस इंटरव्यू का। और इस अंश में दर्शन हीरानंदानी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अडानी मुद्दे की पूरी राजनीति को भी समझाने की कोशिश की है जब मैंने उनसे सवाल पूछा। पहले आप ये सुन लीजिए कि ये राजनीति क्या है, क्या मोडस ऑपरेंडाई है, दर्शन हीरानंदानी के जवाब।
So, Mr. Hiranandani, let me ask you point blank: was Ms. Moitra targeting Mr. Gautam Adani, and was it really to malign the Prime Minister, considering they were both from the same state? You've been in conversation with her. And you've been sending her questions, etc. Is it true that 41 out of the 56 questions were targeting Adani's for a reason? Navika, I think I prefer to stick to my affidavit in this regard. But I can tell you that she felt that attacking Mr. Adani would target the Prime Minister because there was perceived proximity, as both are from the same state. Is that all? Did you ever have conversations with her on this issue? She was a personal friend, and this is how she felt. Did she discuss with you that Congress leaders, including Mr. Rahul Gandhi, were working with her to target the Adani group? Did she ever tell you that? Those details I've already given my affidavit, Navika. Nothing further for me to add on that. So you stand by those statements in your affidavit that she did mention these names? Navika, it's my affidavit. Of course, I stand by it. This is your own deduction. She had frequent interactions with international journalists from Financial Times, the New York Times, the BBC, and also with several Indian publications. She also received unverified details from several sources, including some claiming to be former Adani Group employees. Did she personally tell all these details to you? Yeah, 100%. She could help your business in opposition-ruled states. Did she help you with your businesses in opposition-ruled states? She always spoke well of me to people. बहुत अहम सवाल और बहुत अहम जवाब दिए हैं और तहसीन पूनावाला, ये क्लियर है कि महुआ मोइत्रा टारगेट करना चाहती थी नरेंद्र मोदी को, और ये दर्शन हीरानंदानी जो उनके लॉगिन से सवाल पूछवा रहे थे, जिनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट थे, वो कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने कई बार बात की कि राहुल गांधी और तमाम नेता उनके साथ थे इस पूरी मुहिम में नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए, और इसके लिए ये सवाल पूछे जाते थे, ये पूरी बात उठाई जाती थी ताकि ये जो परसीव्ड क्लोजनेस है इस पर आघात किया जाए। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, अब जब दोस्त ना रहा और दोस्त ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने बता रहा है, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी ही वो शख्स हैं जिन्होंने गिफ्ट भी दिए, जिन्होंने सवाल भी पूछे और जिनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन महुआ मोइत्रा के साथ थी, वो बता रहे हैं कि ये पूरा एक षड्यंत्र था। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी जब नरेंद्र मोदी को अटैक करना चाहती है तो अडानी का इस्तेमाल बिना किसी रीजन के करती है? नमस्कार नाविका जी, आप 2 हफ्ते के बाद आए और दोबारा से आपने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया, तो शहजाद के साथ मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही में मैं अभिजीत अय्यर मित्रा को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर ट्विटर में किसी ने एक्सपोज करना शुरू किया तो अभिजीत ने शुरू किया, तो आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। नाविका जी, कुछ बिंदु पर मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और शहजाद की भी जिस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इसकी नेशनल सिक्योरिटी पर काफी इंप्लीकेशंस होगी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप लॉग इन आईडी देते हो, कोई भी देश का दुश्मन उस पर बग डाल सकते हैं, जो माननीय स्पीकर से माननीय प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस किसी को ईमेल जाए तो सिस्टम बग हो सकता है, तो उसके जवाब तो महुआ मोइत्रा जी को देना ही पड़ेगा। लेकिन नाविका जी, आई एम अस्टाउंडेड, मैं आश्चर्यचकित हूं, हीरानंदानी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, आपको बहुत बधाई उस इंटरव्यू के लिए, ये वही हीरानंदानी है नाविका जी जो गलत काम कर रहा था उसी के एफिडेविट में कि वो एक डोमिनेट हो रहा था महुआ मोइत्रा से। क्या वो एक सबमिसिव इंसान था जो डोमिनेट हो रहा था? आपको भगवान ने दिमाग नहीं दिया? आप दूध पीते बच्चे थे, आप इतने अनजान थे, नादान थे, आप इतने बड़े कॉर्पोरेट थे जो अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट से लड़ रहे, आपके दूध पीते हुए बच्चे थे कि आप उससे डोमिनेट हो रहे थे? और उनके पिताजी सारे यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यू देते जाते कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बढ़िया कोई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति नहीं है। मैं आज आपके शो पे चैलेंज देता हूं नाविका जी, चैलेंज
क्या बीजेपी जितने भी ये हीरानंदानी बाप बेटे को कॉन्ट्रैक्ट मिले कैंसिल करेगी? अच्छा, और एक चीज, ये घर की रेनोवेशन की बात करी। देखिए नाविका जी, मैं महुआ मोइत्रा का कोई फैन नहीं हूं, मैं उसको पसंद भी नहीं करता हूं बहुत हद तक, लेकिन ये जो घर रेनोवेट हुआ ये तो सरकारी आवास था, ये क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति रेनोवेट कर सकता? अगर रेनोवेट हुआ है तो कौन से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने रेनोवेट किया? मैं उसका नाम आपको दे दूं, अभिजीत जानता है उसका नाम। और उस कॉन्ट्रैक्टर ने और किसके किसके बीजेपी नेताओं के घर रेनोवेट किए, वो कॉन्ट्रैक्टर पे एक्शन होगा। नाविका जी, मैं महुआ मोइत्रा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने बता रहा हूं, बीजेपी से बड़ी हिपोक्रिटिकल पार्टी कुछ नहीं। मैं चैलेंज देता हूं, हीरानंदानी का डेटा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, करेंगे कैंसिल ये लोग? देश के इंटरेस्ट है ना, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा करेंगे कैंसिल, इसको यहाँ घसीट कर लाएगी दुबई से और यहाँ पकड़ेंगे। अरे आप कोई बच्चे थे कि किसी ने आपको डोमिनेट किया, आपने कोई गलत काम कर दिया? तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, हीरानंदानी जी महुआ मोइत्रा के साथ नहीं, महुआ मोइत्रा जी पर सवाल उठे हैं और सवाल हीरानंदानी जी ने नहीं उठाए। जय आनंद देहद राय ने एक एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट निशिकांत दुबे जी के पास गया, वो एथिक्स कमेटी गए, ये तमाम घटनाक्रम आप जानते हैं। लेकिन ये सब सच जो अब सामने आ रहा है उसमें यह है कि गिफ्ट्स दिए गए, क्विड प्रो क्वो हुआ। अब आप महुआ मोइत्रा के सवाल तो जवाब नहीं दे पा रहे, आप इस बात का तो जवाब नहीं दे पा रहे कि राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और बाकी कांग्रेस वाले सारे मिले हुए थे और एक दूसरे को शील्ड बनाकर ये सवाल उठा रहे थे ताकि नरेंद्र मोदी को टारगेट कर सकें। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भी बिना वजह नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में घसीटा, क्योंकि ये उनका राजनीतिक उद्देश्य था और यही राजनीति तो हीरानंदानी जी ने समझाई सबको। अभिजीत अय्यर मित्रा, आज सवाल बीजेपी पर, कॉन्ट्रैक्टर पर, हिपोक्रेसी पर हो रहे हैं, पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा कि सवाल पार्लियामेंट में कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के द्वारा एक एमपी पूछ रहा है और उस पर किसी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल नाविका जी, देखिए इसमें 3 अलग पैरेलल ट्रैक्स हैं। पहला है जो अदानी जी पे आरोप लगे हैं, वो कई महीने पहले लगे थे और उस पे काफी इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, नंबर 1। दूसरा इसमें क्या है कि अभी जो महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने काफी सारे गिफ्ट्स के बदले में सवाल किए थे, यानी कि उनको फेरागामो के जूते, कई सारे एक्सपेंसिव हैंडबैग्स जैसे लुई वुइटन, गुच्ची और ये सब। और तीसरा कि उनके घर का जो रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्स्ट्रा पैसा हीरानंदानी ने दिया था। तीसरा ये बात है कि जो उनका जो कुत्ता बच्चा है हेनरी, उसका जो कस्टडी बैटल चल रहा है। देखिए, जो पहला सवाल है अदानी का सवाल, वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पे है। जो तीसरा सवाल है वो एक पर्सनल सवाल है, वो कस्टडी बैटल है दो पेरेंट्स के बीच में। उस पे तो हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पेरेंट्स का ये है। मैं बस इस पे बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी है कि महुआ मोइत्रा को क्या दिया गया और उसके बदले में क्या मिला। तो देखिए, अगर हम सीपीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, किसने नहीं बोला। वैसे फेरागामो को शोरूम को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वैसे पता नहीं आपके जो सिस्टर कंसर्न है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, आज ही एक न्यूज आइटम उसमें छपा है कि जब से ये कंट्रोवर्सी ब्रेकआउट हुआ है फेरागामो का सेल्स एकदम कोलैप्स हो गया है हिंदुस्तान में। तो ये भी जरूरी है कि हम देखें कि क्या हुआ है फेरागामो के सेल्स को। देखिए, ये सब जो आरोप हैं इनसे फोकस ले जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अगर सीपीडब्ल्यूडी में घोटाला है, बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, पर सीपीडब्ल्यू का घोटाला इसमें बड़ा नहीं है, वो एक अलग घोटाला है। ये घोटाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इसी पे बात होना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी का जो कॉन्ट्रैक्टर का घोटाला है, क्या वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट के घोटाले से बड़ा है? ये सवाल तहसीन पूनावाला जी आप खुद से पूछिए, जब तक कि मैं दर्शन हीरानंदानी जी का अगला
क्या अगला एक्सर्प्ट आपको सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा जिसका जिक्र सबने किया है। और शहजाद पूनावाला जी, मैं चाहूंगी आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस मामले में महुआ मोइत्रा के लोकसभा का ईमेल अकाउंट का बेजा इस्तेमाल का गंभीर आरोप भी है। इस पर दर्शन हीरानंदानी ने मुझसे इंटरव्यू में क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। You also admit that you did use the login and password of her Lok Sabha Member of Parliament account for asking questions. Did you actually use them from Dubai, Ms. Hiranandani, and did it ever cross your mind that this was probably not quite the right thing to do? Again, error of judgment? I mean, certainly that part is an error of judgment. But do you think it's more serious than that? Because some members of parliament in the BJP have raised the question about national security. To be honest, I have no idea about all of that. I can only state the facts. How often did you use that login account to put in questions via Mahua Moitra in parliament? I think let the record come out. I think it'll speak for itself. तो वो कह रहे हैं कि मैंने ईमेल का अकाउंट यूज किया, इसका पासवर्ड लॉगिन मेरे पास था, मैंने दुबई से सवाल डाले और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, क्योंकि आप किसी भी लॉगिन को कहां से एक्सेस कर रहे हैं ये आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से जान सकते हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, ये सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव पार्ट है जिस पर बहुत से सवाल उठते रहे हैं पिछले दिनों में, लेकिन आज दर्शन हीरानंदानी ने स्वयं कबूल किया है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का लॉगिन और आईडी और पासवर्ड यूज करके सवाल पूछे थे। तो जिसने किया उसकी तो गलती, उसने एफिडेविट दे दिया। लेकिन अपना पासवर्ड देने के लिए क्या महुआ मोइत्रा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद कसूरवार नहीं है? देखिए, इसका ही जवाब देता हूं। ये बहुत अच्छी बात है दुनिया के लिए कि तहसीन मेडिकल और लीगल फ्रेटर्निटी में नहीं है। अगर तहसीन गलती से मेडिकल फ्रेटर्निटी में होते, कोई आदमी बीमारी लेकर आता और उसका एक सिम्टम होता उल्टी, तो वो बोलते उल्टी को ठीक कर दिया, आप बीमारी को जाने दो। मतलब ये सिम्टम पे बोले जा रहे हैं, और जो बीमारी, मूल बीमारी जो आपने अभी बात की, महुआ मोइत्रा का आचरण मूल बीमारी है। दर्शन हीरानंदानी और उसके बाद जो भी चीजें हैं वो सिम्टम्स है, और निश्चित रूप से जो स्टेटमेंट उन्होंने आपको दिया है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन करना, अगर कोई व्यक्ति उस स्टेज तक जाता है, उसको भली भांति पता है कि वो अपने आप को भी उस क्रिमिनल एक्ट में जोड़ रहा है, फिर भी वो अगर सच बता रहा है तो उसके ऊपर तो जो कार्रवाई होनी है कानून की प्रक्रिया से वो तो होगी। परंतु आज सवाल ये है कि ये मूल बीमारी, मतलब कि अपने संसदीय अधिकार जो लोकतंत्र में जनता आपको देती है उसको हाईएस्ट बिडर तक दे देना, तहसीन पूनावाला को इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं। और इसमें राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम के जर्नलिस्ट, क्या इनको मालूम था या वो अविज्ञ थे, वो अज्ञान थे कि इस प्रकार का मैं कह सकता हूं हायर एन एमपी चल रहा था? इसके ऊपर तहसीन पूनावाला को जवाब देना चाहिए। और मेरा एक और इसमें पहलू है, मुझे तो लगता है, जहां तक मेरा आकलन है, हाँ प्लीज कम इन, बट कम इन आफ्टर 20 सेकेंड्स। नाविका जी, क्या ये केवल और केवल मोदी विरोध में है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी, देखिए इट्स अ बिग ग्रुप, और वो काफी हद तक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहा था जिससे डायरेक्ट अफेक्ट चाइना कर रहा था। चाइना वाज लूजिंग आउट। और क्या चाइनीज की जो एक नेशनल आर्थिक सिक्योरिटी पर हमारा अटैक करने का हमेशा से प्लान रहता है, क्या उसके मंचूरियन कैंडिडेट्स राहुल गांधी कंपनी एंड महुआ मोइत्रा थे? इसका जवाब होना चाहिए। नाविका जी, मुझे मौका मिलेगा। बिल्कुल, सवाल कई हैं, लेकिन बिल्कुल तहसीन पूनावाला आपको मौका दूंगी, और इतना मौका दूंगी क्योंकि एक और सवाल मैंने पूछा है, और ये जो सवाल है ये अभिजीत अय्यर, हाँ अभिजीत अय्यर मित्रा कई बार पूछ चुके हैं
कि वकील जय आनंद देहदराय की सीबीआई कंप्लेंट और दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में इन बातों का भी जिक्र है कि महुआ ने कैश और गिफ्ट हासिल किया। इंटरव्यू में दर्शन हीरानंदानी ने इस विवाद पर क्या कहा, पहले उससे सुन लीजिए। Mr. Hiranandani, there is also a mention in your own affidavit that you did help her she was allotted a member of parliament resident in Telegraph Lane, and you helped her do up the house and do the interiors of the house. So I'm saying that there is material exchange that did take place between you and her. Navika, again, I've addressed this in my affidavit. Nothing more, nothing less. I don't wish to add to it right now. But there is specific amounts that have been spoken about, and this is going to come up in the investigation. And Mr. Hiranandani, you've said you want to come clean even before the investigation begins. So Mr. Dehadrai claims that 75 lakhs were given directly to Ms. Moitra in cash prior to the Lok Sabha elections of 2019. This was for her election expenses. Now 75 lakhs is a amount that is very specific. It's a yes and no question. Was this given or not given? Navika, again, I've already addressed this. Whatever I am aware of, whatever my involved in the matter, I have already put it in the affidavit. Nothing more, nothing less. I don't wish to add to it right now. But the allegations on money have not been clarified, and this is likely to come up in the investigations, which is why I ask you. There are two specific allegations, one of a 75 lakh rupee payment and one a 2 crore through Hawala channels to a close associate of Mahua Moitra, who's also a member of parliament. There are two allegations on specific amounts. I just think it's an opportune moment, Mr. Hiranandani, for you to come clean. Navika, whatever extent of my involvement is there in the matter is already there in the affidavit. The gifts, and I can read out the list that has been provided by Mr. Jay Anand Dehadrai: iPhones, diamond and emerald jewelry, scarves from Hermes and Louis Vuitton, 35 pairs of shoes from Salvatore Ferragamo, dozens of bottles of French and Italian wine, luxury cosmetics, bags from Gucci, a crocodile leather bag, cash in rupees and pound sterling. These are very specific details that have been mentioned. Mr. Hiranandani, I mean, people give gifts to their friends. Was this just friends giving gifts to friends? Navika, like I said, that I would prefer to stick to my affidavit. And, when called upon by either the Parliament Ethics Committee or any sort of authority, I will gladly cooperate and provide each and every detail that's required. तहसीन पूनावाला और एफिडेविट में उन्होंने लग्जरी गिफ्ट्स की बात की है, उन्होंने उनके घर के रेनोवेशन की बात की है, ये सब कबूल किया है और बाकी पैसों के डिटेल वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तहसीन पूनावाला, डिफेंस क्या है इसका? नहीं नाविका जी, देखिए, दो चीज हमें समझना होगा। महुआ के कॉन्डक्ट को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल और जिस तरह से ये जा रहा है, अचानक से ये लग रहा है कि ये हीरानंदानी का सपुत्र जो डोमिनेट होता है और सबमिसिव है, वो एक पाक साफ व्यक्ति है जो सिर्फ गलती से मजबूरन हवाला करता है। और वो जय, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जब उसकी गर्लफ्रेंड हवाला कर रही है, एक्सपेंसिव गिफ्ट ले रही है, गलत काम कर रही है, पार्लियामेंट्री आईडी दी, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जब तक उसकी गर्लफ्रेंड है तब तक वो कुछ नहीं करता है। आज ब्रेकअप के बाद जाके सारी चीजें वो पब्लिक करता है। मैं महुआ को डिफेंड नहीं कर रहा हूं नाविका जी, अगर बीमारी दूर करनी है तो इस बीमारी की जड़ भारतीय जनता पार्टी। आप ये सवाल उठाते रह सकते हैं, आप ये सवाल उठाते रह सकते हैं, लेकिन क्या ये जवाब है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट का? क्या ये जवाब है? मैं सिर्फ
हाँ या ना पर सवाल के जवाब मांगूंगी, नाविका, समय कम है। अभिजीत अय्यर मित्रा, ये सारे सवाल शायद अपनी जगह सही होंगे, लेकिन क्या ये महुआ मोइत्रा के कॉन्डक्ट को एक्सप्लेन करता है? यस और नो, हाँ या ना? नो नाविका, 5 नो सेकंड। एंड आई टेल यू व्हाई वेरी क्विकली नविका जी, क्योंकि देखिए जो नहीं। भी ठीक है जिल्टेड लवर जो भी है, आई एम आउट देखिए ऑफ इसका टाइम। शहजाद पूनावाला, क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 के सेकंड। कॉन्डक्ट को एक्सप्लेन करता है, हाँ 5 या ना? बीजेपी का कॉन्डक्ट, तहसीन खुद कह रहे हैं कि वो, एक सेकंड, डोंट इंटरप्ट। तहसीन खुद कह रहे हैं कि मैं कॉन्डक्ट डिफेंड नहीं करता, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जब डिफेंड करने लायक कॉन्डक्ट नहीं है तो अभी अपने पद पर क्यों बनी हुई है? पेंडिंग इंक्वायरी क्यों इस्तीफा नहीं क्यों देते? नहीं लाते आप? हीरा नंदानी को खींचकर लाइए सर, लाइए ना। सवाल यही है कि बताइए, क्या अब महुआ ये मोइत्रा मतलब कि- अपनी चुप्पी अरे पहले तोड़ेंगी? और सांसद इन से तो सवालों बोलिए का इस्तीफा। कि कौन गलत है कौन सही है, वो अपनी जगह वो उनके सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ का है। ओथ को लेकर जो खड़े होते हैं लोकसभा में, उनके कॉन्डक्ट का है। और क्या कोई गिफ्ट्स लेकर, कोई क्विड प्रो क्वो पर इस तरह के सवाल पूछ सकता है पार्लियामेंट में? और सिर्फ सवाल पूछना नहीं, किसी के कहने पर अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड ही किसी को दे देना, क्या ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सही कॉन्डक्ट है? ये सवाल है पब्लिक का। हम इंतजार करेंगे तृणमूल कांग्रेस या महुआ मोइत्रा हमें जरूर जवाब दें। आज इस शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर कहानी अभी खत्म नहीं।